Gadar has not now my film. The Hmm. film has become the people's film. Yeah. Everybody in the audience feel it's his film. 20 year of Gadar, Thank. not me. I congratulate everyone to you Yeah. and every audience of the world for 20 year of Gadar. अमीषा को तो मैंने स्क्रीन टेस्ट लेके फिल्म दिया था, उसकी कोई भी जी. फिल्म नहीं आई थी. गदर मेकिंग अपने आप में एक उत्सव था, एक फेस्टिवल था, विच वॉज अ Hmm. ग्रेट थिंग. It's 20 years for Gadar Ek Prem Katha, a film that revolutionized Hindi cinema coming in the new millennium. And to celebrate that big and humongous achievement today, we have its director Anil Sharma with us. So Anil sir, first of all, welcome to Spotboy. And Thank you sir, very much. Thank you. Thank you. like 20 years, like a lot of films achieve that. Like every film that comes get to 20 years someday or the other. But to have that kind of importance even after 20 years, like the film is rewatched again and again. People, abhi bhi patriotism when it comes to Gadar is one of the finest films. People still relate to it. So how special is that achievement to complete 20 years of such an iconic film for you? I'm feeling that it's today, 15 June 2001, today itself. And Yeah. the film is releasing, and I'm going to watch the film in theater today, which I was watching this time in Shan Cinema. Yeah. So for me, it's a very nostalgic moment, Hmm. and I'm living that moment because since Hmm. last 2 days, there's a lot of interviews, a lot of things are happening Yeah. regarding this 20 year. Suddenly, I don't know how, from where this came 20 year of Gadar, 20 year of Gadar. Every Yeah. media is so kind. So this film of this Gadar has not now my film. The Hmm. film has become the people's film. Yeah. Everybody in the audience feel it's his film. So I Yeah. congratulate everybody, you and everybody in the Hmm. audience, Hmm. and I thank God for giving me this kind of a success. Hmm. It's not me; it's only God who can give you, because there are many makers, better makers Hmm. than me in the world, but somehow they didn't got this kind of success and Yeah. this kind of love from the audience, which I got. So Hmm. I thank you very much, because it's not my film, it's your film and everybody's film. So I congratulate you all for that 20 Thank. year of Gadar. Thank. Not me. I congratulate everyone to you Yeah. and every audience of the world for 20 year of Gadar. Yeah, sir. That's true. Like it's the film for the people and of the people. And जैसे अभी भी जैसे नए जनरेशन के बच्चे हैं, they are also seeing the movie for the first time. कई बार तो अभी भी आपको मैसेजेस आते हैं लोगों के कि जब वो लोग अरे पहली बार अभी देख रहे होते हैं. इतने लोग जुनून में आ जाते हैं, जो भी देखता है वो जी. मैसेज करता है. अब देखो ना कैसा हो रहा है, 20 साल गदर के हो रहे हैं और हर कोई बात कर रहा है. और मैं Yeah. आप जैसे यंगस्टर सबसे बात कर रहा हूँ. अभी मैं लोगों से बात करता हूँ, कोई कहता है मैंने 50 दफे देखी, कोई कहता है मैंने 100 दफे देखी. इवन द जर्नलिस्ट, कोई जर्नलिस्ट ने Yeah. मुझे ये भी कहा कि मैंने 200 दफे देखी है पिक्चर. Yeah. यंग लड़की तो अभी मैं लोग देख ही रहे हैं, बिकॉज फिल्म की रिलेटिविटी बहुत ज्यादा है. जी. एक पति अपनी पत्नी को लेने जाता है, वो जी. रामायण का जो फील है उसके अंदर वो जी. इतना ज्यादा है कि वो बहुत कनेक्ट करता है लोगों से. जी. बिल्कुल. एंड सर लाइक जब फिल्म आई थी उस समय लाइक सनी सर वाज अ स्टार सुपरस्टार एट द टाइम बट अमीशा वाज लाइक जस्ट 1 year old and she had just started. नो नो, अमीषा अमीषा को तो मैंने स्क्रीन टेस्ट लेके फिल्म दिया था, उसकी कोई जी. भी फिल्म नहीं आई थी. Oh. I signed, I've auditioned almost 40-50 girls. I Yeah. saw 400 photographs, out of which Hmm. I selected 40 girls, and 40 girls I took audition. Amisha is one of them. So Okay. Amisha was the new girl at the time. No film doing कहो ना प्यार है, but Okay. आज का सा समय नहीं था कि जब कोई Hmm. एक प्रोड्यूसर किसी को साइन करता था, वो दूसरी फिल्म नहीं कर सकता था. हाँ. उस जमाने में भाईचारा ज्यादा था. अगर मैंने साइन जी. किया तो आप भी साइन करो, कोई फर्क नहीं जी. पड़ता था. इट वॉज नॉट बिजनेस, इट वॉज मोर रिलेशन. ओके ओके सो मतलब आपने बिना उनका काम देखे ऑलरेडी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन सेलेक्ट किया था अमीशा या को. या ओके ओके या एंड लाइक गदर हैड वन ऑफ द बिगेस्ट फुटफॉल्स इन दिस सिनेमा. लाइक अभी तक उसको मैच करने वाली फुटफॉल्स मे भी देखी होगी तो बाहुबली ने देखी होगी बट नो अदर फिल्म हैज सीन. सो आज के नहीं टाइम नहीं, पे किसी ने भी नहीं देखी. गदर का फुटफॉल है 17.50 करोड़, यानी जी 170 मिलियन. किसी जी भी हिंदुस्तानी हिट फिल्म ने 4-5 करोड़ के ऊपर का फुटफॉल नहीं देखा. जी गदर 17 करोड़, 17 जी. करोड़ आप आज के समय में सो कोई भी फिल्म देखते हैं कि मतलब वो शायद क्रॉस कर पाए कभी भी ऐसा बिकॉज गदर ने देखो कैसा ऐसा मार्क है, किया.
संसार में हर चीज क्रॉस होती है, जी। ऐसा नहीं है। मैं आज नहीं 10 साल बाद हो गया, 20 साल में तो नहीं हुआ, हम्म, लेकिन हो सकता है अगले 10 सालों में हो जाए। जी। लेकिन मेरे से बेटर डायरेक्टर, मेरे से बेटर कहानी कहने वाले, हम्म, मेरे से बेटर फिल्में बनाने वाले लोग आ ही रहे हैं, और जी। मेरे से बेटर बनाने वाले पहले भी थे, तो वो क्यों नहीं जी। कर सकते हैं। अभी गदर, शोले थी, मदर इंडिया थी, मुगले आजम थी, तो गदर आई ना। जी, बिल्कुल। एंड तो गदर के बाद भी कोई गदर आएगी जिसकी कदर जी। होगी। जी, बिल्कुल। सो लाइक गदर इज नोन फॉर इट्स सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स, लाइक हैंडपंप वाला सीन सब जानते हैं। वो तो इतना जी जी। आइकॉनिक बन गया, तो उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था? बिकॉज तब इतना कुछ आपको पता नहीं। देखो क्या था, एक आदमी, सनी देओल उसमें, तारा सिंह जो है हम्म, अशरफ अली के साथ हर चीज को एग्री कर लेता है, जी। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी सियासत नहीं छोड़ता। तो जी। गुस्सा तो आएगा, जी। गुस्सा तो आएगा कि आप अपनी सियासत क्यों किए जा रहे हैं। तो आदमी इतना गुस्से में आ जाता है, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन इतना ज्यादा था कि हम्म, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्डिंग ही उखाड़ के फेंक दूं, लेकिन जी। बिल्डिंग उखाड़ के तो फेंका नहीं जा सकता है। तो देन आई हैव आइडिया कि हैंडपंप रखते हैं, हैंडपंप उखाड़ेंगे, एंड इट हैपेंड। ओके, ओके। सो लाइक ऐसे ही कुछ ऐसा ऑन द सेट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा हो ऑन द सेट ऑफ गदर? बहुत सारे गदर पे इतने इंसिडेंट्स हैं जी। कि गदर की मेकिंग ऑफ गदर पे एक फिल्म बन सकती है। जी। अभी हम लोग शूटिंग कर रहे थे, स्टोन सीक्वेंसेस थी, 5,000 लोग थे, हम्म, 5,000 लोग इस तरफ से स्टोन फेंक रहे थे, 5,000 लोग लेफ्ट दूसरी तरफ से फेंक रहे थे। हम जी। 15-20,000 25,000 डमी स्टोन बना के लेके गए थे, जी। जिनसे नहीं लगती है, वो हाँ, सबको दे दिए। अब वो डमी हाँ, स्टोन दे दिए, और डमी स्टोन तो 2 मिनट में खत्म हो गए। या ऑडियंस पब्लिक इतनी ज्यादा थी। उसके बाद लोगों ने वहां से नदी का किनारा था, जो रियल पत्थर होता है, उठा के फेंके। ओ माय गॉड, जो आलम हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे कितने आलम हुए हैं, ऐसे कितने। 50,000 क्राउड के बीच में आप फिल्म कर रहे हैं, तो और हम्म, गर्मी का 48 डिग्री टेम्परेचर में आप शूट कर रहे हैं। सब कुछ रियल है, कुछ भी जी। तो वीएफएक्स नहीं है। तो ये सब जी। इतना आसान नहीं था। ये जी। सब में मजा भी आ रहा था, एक्चुअली बहुत हम्म, लुत्फ आ रहा था। गदर मेकिंग अपने आप में एक उत्सव था, एक फेस्टिवल था, विच वॉज अ हम्म, ग्रेट थिंग। जी। एंड लाइक गदर के दौरान आपको अपने खुद के बेटे को पहली बार डायरेक्ट करने का मौका मिला। सो वो एक्सपीरियंस जी, कैसा था? उत्कर्ष एंड भैया। जी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? एंड मतलब उन्हें बताना कि मैं हूं तुम्हारा पापा, बट अभी स्क्रीन पे सनी सर है तुम्हारे पापा, ये याद रख। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था कि हम बच्चा ढूंढ रहे थे, मैं तो हम्म, चाहता ही नहीं था उत्कर्ष उस फिल्म में काम करे। हम जी। लोग बच्चा ढूंढ रहे थे। वो हम्म, क्या रहा था, कोई बच्चा मिल नहीं रहा था। जो बच्चे आते थे, और बच्चों की कोई गलती होती नहीं, उनके माँ बाप की गलती होती है, वो जी। उनको एक्टिंग सिखा के लाते थे, हम्म, एक्टर बना के लाते थे। और जी। बच्चा मुझे चाहिए था नेचुरल, जो हम्म, एक्टिंग ना करे। जी। तो अमीषा पटेल आया करती थी, जी के लोग घर पे आया करते थे, अमीषा पटेल रोज ट्रेनिंग के लिए आती थी। तो जी। वो उत्कर्ष को देखती थी, उत्कर्ष 5 साल का था, बड़े बड़े उसके हाँ, अच्छे बाल थे, घुंघरालू से बाल थे। तो हाँ। बोलती थी उत्कर्ष को क्यों नहीं आप ले लेते हो उसमें। मैंने हम्म, कहा ही सो स्वीट। मैंने कहा देखो, उत्कर्ष को भी पढ़ाई करनी है, अभी जूनियर हम्म, केजी में, इसको आगे पढ़ना है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसको एक्टर बनाना है। बचपन में इसने एक्टिंग कर ली, तो फिर इसका हम्म, ध्यान पढ़ने से हट जाएगा। और हम्म, उत्कर्ष भी ये सुन के भागता था, उत्कर्ष को नहीं हम्म, करना था, नहीं जी। करना था, नहीं करना था। फिर एक दिन हमको मिल ही नहीं रहा था, शूटिंग एकदम नजदीक आ गई। हम्म, तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा उत्कर्ष को ले लेते हैं, कर लेते हैं। हम्म, तो फिर उत्कर्ष को समझाया उनकी माँ ने कि भाई पापा को कोई मिल नहीं रहा है, तो हेल्प हिम। तो हम्म। बच्चे आजकल के तो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो मेरे पास आया, पापा इफ यू वांट फॉर यू आई कैन डू इट, ओके। और अगर कोई नहीं हो रहा है तो। एंड मैंने उसे गले लगा लिया। उसका ये था कि भाई आपको मदद चाहिए तो मैं करता हूँ। जी। तो एक अच्छा जेस्चर था, तो फिर हाँ, लिया। मगर वो आसान नहीं था। 100 दिन तक जी। वो मेरे साथ था, 100 दिन तक हम्म, शूटिंग में मेरे साथ था। उसको रोज रहना है मेरे साथ शूटिंग में, उसकी माँ हम्म, को भी रहना है। फिर मेरी एक जी। छोटी बेटी थी जो 2.5 साल की थी, उसको भी हम्म, साथ में रहना है। तो जी। हमारे लिए तो गदर का 100 दिन का वनवास हो गया था। हम तो परिवार के साथ ही हाँ, रहते थे, डे जी। हो नाइट हो कुछ भी हो। हम्म, और तो इसीलिए पूरा आनंद भी आया, इसीलिए सब कुछ बहुत बढ़िया भी रहा, और जी। बहुत कुछ सहा भी उसमें। लेकिन क्या, हम्म, बिना सहे कुछ पाया तो जाता नहीं है। जी, बिल्कुल। गदर जैसे अचीवमेंट के लिए जो कुछ सहा वो बहुत कम था। जी। एंड मतलब लाइक वो पहली बार आप अपने बेटे को देख रहे थे काम करते हुए। सो कभी कुछ ऐसा कोई सीन हुआ या कुछ ऑफसेट ऐसा हुआ जिससे आपको बहुत इमोशनल फील हुआ अपने बेटे को नहीं, उसमें? अब क्या होता था कि वो तो एक्टर, नेचुरल एक्टर था।
उसको हमने एक्टिंग सिखाई नहीं थी। जो हम उसको जी बोलते थे वो 2:30-3-3 बजे उसके शॉट होते थे। जी एक ही सीक्वेंस है जिस वो उसको ट्रक पे सनी सर के साथ बैठ के जाना है, या बस की छत पे बैठ के जाना है। टेंशन तो होती थी कहाँ कहाँ शूट के करनी है। जी क्लाइमैक्स का सीन है, सनी सर के कंधे पर है, वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे भागते हुए जाना है। जी अब सोचो कितना टेंशन हुआ होगा जी एज ए जी पिता। तो बिल्कुल यू कैन इमेजिन। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए, मगर ठीक है, अभी फिल्म मेकिंग है, करते हैं। डायरेक्टर के ऊपर, फादर के ऊपर डायरेक्टर हावी हो जाता है अक्सर। जी तो ठीक है, चलिए, हाँ, अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। एंड आई एंजॉयड वर्किंग विद उत्कर्ष बिकॉज बहुत नेचुरल था वो। या और इवन सारे सनी भी, अमीषा भी, अमरीश जी वॉज ग्रेट, जी विवेक शौक वॉज ग्रेट, जो बेचारा रहा नहीं। हम्म, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। जी हम्म। एंड सर लाइक उस समय गदर वाज रिलीजिंग विद लगान, अनदर आइकॉनिक फिल्म, लाइक वो भी आगे जाके दोनों सक्सेसफुल हुई बहुत ज्यादा वो भी। पर उस समय लाइक आमिर खान आल्सो वाज अ सुपरस्टार, सो जब रिलीज के पास का टाइम था, आपको थोड़ा बहुत कुछ डर था कि मतलब मे बी बिकॉज नहीं, उसमें मुझे बिल्कुल डर नहीं था। क्या था कि उस वक्त आज जैसा माहौल नहीं था जी कि टकराने से लोग डरते थे। जी लगान भी बहुत अच्छी फिल्म थी हम्म और उसने बहुत सम्मान दिलाया। आशुतोष हम्म गोरवेकर और आमिर खान साहब ने जी बहुत सम्मान दिलाया फिल्म जी को। और गदर, तो दोनों फिल्मों को उस सप्ताह कोई 12 बजे गदर देखता था, 3 बजे कोई लगान जी देखता था। तो हाँ ऐसा सब हो रहा था। पीपल हैव एंजॉयड लाइक एनीथिंग। एंड हम्म एक फिल्म फेस्टिवल बन गया था भारत में। जी और मैं लगान के लिए आशुतोष गोरवेकर और आमिर खान साहब और जमुन सुगन साहब तो रहे नहीं दुनिया में, उन सबको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत जी अच्छा उन्होंने काम किया और बहुत अच्छी जी फिल्म बनाई। और मैं तो चाहता हूँ साल में, हर साल एक दफे ऐसा हो, ऐसी दो बड़ी फिल्म में रिलीज हो। देश फिल्म में हो गया था, ऐसा जी हर साल क्यों नहीं होता? वो तो जी बहुत जी अच्छा रहे। जी पब्लिक जी बहुत है, देखने वाली पब्लिक की कमी नहीं है। पब्लिक, बिल्कुल आप 100, आप 8 फिल्म एक दिन में दिखाओगे, पब्लिक 8 फिल्में देखेगी। हम्म जिसको देखना है वो देखेगी। प्रॉब्लम क्या होगी, हम आज लोग से वीकेंड के चक्कर में फंस गए हैं। हम सोचते नहीं हमारी फिल्म बड़ी हिट हो, लॉन्ग चले। ये हमारी हम्म, भावना ही नहीं रही है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। जी एंड सर तो जैसे फिल्म पार्टीशन पे थी एंड वॉर वाला टाइम, तो आपने किन्हीं लोगों से बात करी थी जिन्होंने मतलब पार्टीशन जिया हो टू गेट सम अरे इंस्पिरेशन? बहुत, हमने 70-70, 80-80, 90-90 साल के कितने लोगों से बातचीत की। उनके इमोशन हम सुनते थे तो कहानियां रो पड़ते थे। बहुत सारे गदर में जो कहानी है, बहुत सारे जी गदर के जो इंसिडेंट्स हैं, वो जी एक्चुअली सब रियल इंसिडेंट से ओके इंस्पायर्ड है। रियल इंसिडेंट तो आज आप रियलिस्टिक फिल्में बना रहे हैं। गदर के अंदर 90% इंसिडेंट रियल है, हम्म सोचे हुए नहीं है। जो हमने सुने थे वो हमने जी डाले हैं। जी किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हम्म हुआ। जी, तो जैसे सकीना और उनकी सनी जी की स्टोरी थी, वो भी कहीं से इंस्पायर्ड थी? बिल्कुल बिल्कुल, हर कहानी, हर चीज इंस्पायर थी। कि माँ अपनी बेटी को जहर कर पुड़ियाएं देती है पिक्चर के हम्म ओपनिंग में ही, कि जी ये भी सीन किसी के साथ हुआ था। जी ये सब हुआ है, हर चीज हुई हुई है। कि ओके भाई आपको ट्रेन में काट रहे हैं तो उससे पहले आप जहर ले लो। हम हम्म कहा, तो सबके साथ रियल हुआ है। जितनी भी जी घटनाएं थी वो, जहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर जहाँ इतने सामान रह जाते थे, वो बेचारा, हम्म एक हमें मिला था बंदा जो कि स्टेशन मास्टर था। वो हम्म कैसे बिहेव करता था, वो वैसा ही लिया हमने। जी ओके इसीलिए वो इतना रियल लगता था। जी जी बिल्कुल एंड लाइक बी इट गदर या उसके बाद अपने हो गई या फिर अब तुम्हारे हवाले वतन, हीरो, लाइक आपकी रिलेशनशिप देओल फैमिली के साथ बहुत अच्छी रही है। आप जी पहले जी। इंसान थे जो मतलब तीनों देओल्स को, धर्मेंद्र जी एंड बॉबी एंड सनी सर, सबको साथ लाने के लिए भी आप पहले वो डायरेक्टर थे। सो वो रिलेशनशिप कैसे फ्लरिश किया है ओवर द ईयर? अब मैं चारों को भी साथ ला रहा हूँ, करण को जी भी जी साथ ला रहा हूँ अपने जी शो में। तो वो रिश्ता तो है। धर्म जी के साथ में एज ए असिस्टेंट काम किया था द बर्निंग ट्रेड में, जब मैं 18 साल का था। जी वहां से एक रिश्ता बना। हम्म, बच्चा था, उनका हम्म, बड़ा फैन था, एक रिश्ता बना। फिर हुकूमत आई, इतनी बड़ी हिट हो गई। और धर्म जी क्या, इतने अच्छे इंसान है, उनके रिश्ते सबसे हम्म, बनी जाते हैं। हम्म, धर्म जी जिससे मिलते हैं वो धर्म जी का हो जाता है, और धर्म जी उसके हो जाते हैं। जी धर्मेंद्र एंड दिस ड्यूअल फैमिली इज वंडरफुल फैमिली, हम्म, एंड दे आर सो ब्यूटीफुल फैमिली। या एंड जैसे आपने बोला आप करण को भी ला रहे, तो आप 3 जनरेशन के साथ काम कर चुके हैं जी, अपने देओल टू, फैमिली बिल्कुल, के। हाँ। जी, तो मतलब हाँ, जैसे अब आपका बेटा भी एक्टर है, सनी सर का बेटा भी एक्टर है एंड आप दोनों दोस्त हैं, तो कोई प्लान में भी उत्कर्ष और करण को साथ में एक फिल्म बनाने यार तुमने तो बहुत आगे की बात कर दी, लेकिन का? जरूर जिंदगी में उत्कर्ष और करण के साथ कोई ना कोई कभी प्रोजेक्ट होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। कोई जी कहानी आएगी तो जरूर होगा उत्कर्ष और करण के साथ प्रोजेक्ट, जी जी बिल्कुल होगा।
तो जैसे अपने टू यू वर अबाउट टू स्टार्ट इन मार्च, बट फिर वो कोविड वगैरह का इतना सीन हो गया, कोई अभी प्लान कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट? सितंबर से हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन एक बार लंदन में छूटेंगे, लंदन के खुलने की खबर आ जाए तो हम जी प्लान जी, करेंगे। ओके ओके ओके। तो उसी हिसाब से फिर रिलीज भी डिले उसी हिसाब से होगी। हाँ, सब याद है। जी। सो अब रिलीज तो थे, पिक्चरें रिलीज हो रही, रिलीज की अभी क्या बात करते, हाँ, थिएटर तो खुले, रिलीज की बात तो वही तब करेंगे। वही। हाँ हाँ। तो जैसे आप क्या बता सकते हैं अपने टू के बारे में? आई नो मतलब अभी इतना ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकते, बट अपने टू के बारे में यही बताऊंगा कि भाई अपने टू एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है, जी बॉक्सिंग बैकड्रॉप है, और बलदेव सिंह की जो पहले परिवार की जो फिल्म फैमिली थी वही आगे बढ़ी है, उसके उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे, जी जब जी अपने टू की तैयारियां शुरू होंगी उसके बाद करेंगे। जी जी, ओके ठीक ओके ओके। सो अपार्ट फ्रॉम अपने टू कोई और फिल्म जिस पे आप काम कर रहे हो अभी? अभी कोई और फिल्म नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, अभी कोई फिल्म नहीं है, अभी सिर्फ अपने टू पे ही काम कर रहा हूँ। जी जी बाकी कोई मौका आएगा तो बताऊंगा, जब समय आएगा जी तो जी, बताऊंगा। ओके। एंड सर हाँ। जैसे लास्टली, आजकल का एरा रीमेक वाला है, तो आपको गदर के रीमेक के ऑफर्स आते हैं या आपने कभी गदर सोचा? का रीमेक नहीं, नहीं, गदर का रीमेक क्या होगा, गदर का रीमेक कहाँ से लाऊंगा तारा सिंह, कहाँ जी से लाऊंगा क्या? तो गदर का रीमेक तो नहीं होता, लेकिन गदर टू की लोग बात हमेशा करते हैं। जी तो वो मैं हमेशा एक ही उत्तर देता हूँ, जिस दिन इमोशंस का बम मेरे पास आ जाएगा, ड्रामे का बम, रेंजर का बम, रियलिज्म का बम मेरे पास आ जाएगा, उस दिन जी जरूर मैं फोड़ूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं। हाँ जी। जी जी। तो आपको लगता है कोई मतलब आज के टाइम में कोई एक्टर है जो मतलब सनी सर का वो एंग्री मैन वाला मैच कर सकता देखिए, एक्टरों की कोई कमी थोड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, है? लेकिन एक कलाकार से दूसरे कलाकार को कंपेयर करना उचित नहीं है, ना मैं कर। जी जी, ओके। बट आ- बट थैंक यू सो मच आज भी अनिस। कल। जी जी, ठीक है बेटा। जी जी, ओके बेटा। थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी सर, मच। बहुत अच्छा थैंक यू लगा आपसे बात आकाश। करके, एंड बिग चलो, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गदर। थैंक यू, थैंक And यू, थैंक यू, थैंक hopefully we'll do this again on 25, 30, a lot of anniversaries of Gadar. यू। या A बिल्कुल lot of बिल्कुल it. बिल्कुल, थैंक Thank you यू, so much. थैंक यू।